Hello my dear student, today is the lecture video of standard 6th lesson number 5 decimal fraction, right? So in this chapter we have to learn what do you mean by decimal first. Means आपको सबसे पहले पता होना चाहिए what do you mean by decimal and then we will go on the fractions and already fraction means you know what do you mean by fractions. तो सबसे पहले हम देखेंगे what do you mean by fractions. Fractions क्या होते हैं? The numbers which is in the form of numerator and denominator that we call as a fraction. जैसे कि numerator and denominator होना चाहिए, ठीक है. Just like 4/7 this we called as a fraction. Have you understood what do you mean by fraction? Fraction means जिसमें कि numerator और denominator form में कोई भी number हो that we called as a fractions, right? So this is about the fraction. Now we have to see that what is the mean by decimal. Decimal numbers means क्या होता है, what do you mean by decimal point, right? So in lower classes already you learn that what do you mean by decimal point. Suppose I am writing any numbers. Now I am going to write 3, 4, 2.21. Okay. So suppose I am writing like this way. So or other ways if I am going to write 3, 4, 2, 2, 1. You compare this both the number. Okay, something is different in between the number, yes or no? In between this number I put a 1 point. I put 1 point, but in this number I am not going to keep or put any point, right? So इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे एक point है, but in this complete number there is no points are there. Okay, so in between the number if the point is coming, so this point, okay, what I am saying, that point we have to say that this point we call as a what? Decimal point. Have you understood? That point we call as a decimal point, and this complete number we can read as a decimal number. इसको कैसे बोलेंगे? Decimal number we have to read out. जब हम read करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये decimal number है. क्यों decimal number है? That word decimal why we are using? Because in between the number there is a decimal point. So that's why we have to call that number as a decimal number. Have you understood? And the second main basic concept is that in lower classes already you learned what do you mean by unit, tens, hundred, ones, tens, hundred, thousand. Yes. So how we are writing here? Suppose I am writing here unit, or we can say write ones, tens, hundred, thousand, 10,000. Like this way we are writing. So ones means 1, right? And 10 means what? 10. And 100 means 100. Yes. And 1000 means 1000. Like this way we are going, है ना? So if any number place value, if I am going to write the place value of this, so definitely we can write it is in ones. How we are going to read? Ones place, tens place, 100 place, 1000 place, 10,000 place, right? But in this situation, in the decimal point, how we have to read? In this case, we can read easily that it is in 1 place, it is in 10 place, it is in 100, it is in 1000, then it is in 10,000 place, है ना? But in this case, how we have to read? जब decimal point आता है तो हमें कैसे read out करना है? That we have to go through. तो देखिए कि अब एक example. Suppose I am writing here 342.21, and always remember students, when you are going to write the decimal point, you don't write the decimal point at the center. ठीक है, डेसिमल पॉइंट लिखने का भी एक वे होता है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी आपको डेसिमल नंबर्स लिखना होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एनी डेसिमल नंबर एट दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग? यस, आप कैसे लिखते हो? 342, इसके सेंटर में 0.21. ओके, बट यू कैन सी, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड यू सी द हाउ दे रोट. मीन्स दे आर राइटिंग द डेसिमल पॉइंट एट द बॉटम. यहाँ पे लिखा जाता है, ना तो सेंटर में. दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज वन इज द राइट वे टू राइट द डेसिमल पॉइंट एट द डाउन. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू. हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ओके, और यहाँ पे पॉइंट होता है क्योंकि ये पॉइंट है. पॉइंट के बाद में जैसे ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस होगा, ये 100 प्लेस होगा, ये 1000 प्लेस होगा. ओके, बट इन दिस केस जैसे ही डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी नंबर आते हैं तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं? 1/10 फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/10, 1/100, है ना? जैसे कि आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 30 में एक आपको प्रैक्टिस सेट 14 दी है.
Okay, in that practice set 4, okay students, you just hand over. I am not writing any question in the blackboard, just you look after your textbook. When I told you already that जब भी मैं पढ़ाती हूँ, you have to hold your textbook in your hands. Okay, that will be very beneficial for you. Okay, तो जैसे कि आपने देखा है यूनिट्स लिखा है, यहाँ पे वंस लिखो या यूनिट्स लिखो, नो मैटर. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप वंस प्लेस में 1 लिखो, टेंस में 10, 100 लाइक दिस वे इज देयर. ओके, बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1/10, 1/100, 1/1000 इस टाइप में आपको लिखना होता है. ठीक है, जैसे कि इसका अभी लिखना है प्लेस वैल्यू. जैसे पॉइंट है तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 कौन से प्लेस में है यहाँ पे स्टूडेंट? वंस प्लेस में, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा. अब 4 कौन से प्लेस में है? ये वंस प्लेस में. 4 कौन से प्लेस में? 10. तो 4 के साथ क्या ऐड करना हमें? एक 0, क्योंकि 10th प्लेस में तो 40 हो जाएगा ऑफ कोर्स. ओके, 100 मीन्स हाउ मेनी 0? 2 zeros आर कमिंग. सो ये कौन से प्लेस में? ये वंस प्लेस में 2 और 10th प्लेस में 4 और ये 100 प्लेस में क्या है यहाँ पे? 3. तो मीन्स हाउ मेनी 0? 3 0. हैव यू अंडरस्टूड? 1000 प्लेस इज नॉट देयर, सो नो नीड टू राइट. देन आफ्टर दैट 1/10, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2/10. यहाँ पे 1/100. Have you understood? So like this way you have to write. If anybody asks you, write the place value of the given number, so you have to write like this only. Okay, and one more thing is there, just हमने जब कभी भी कोई भी सेंटीमीटर मीटर सॉल्व करते थे तो there are coming how many zeros are coming? 1 meter is equal to 100 centimeter, 2 zeros are there. Okay, when in the case of kilogram, how many zeros are coming? 3 zeros are there. ठीक है, means just like अगर 1 किलो हमने देखा, अगर 1 kg is equal to how many ग्राम? 1000 ग्राम. ठीक है, 1 कंप्लीट kg, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम. तो हाफ kg कितना होगा स्टूडेंट्स? हाफ इसका मीन्स आधा, आधा मीन्स 500 ग्राम होगा. ठीक है, जैसे कि एक सपोज एक कंप्लीट सर्कल है, ये सर्कल जो है 1000 है, तो अगर मैंने इसके 4 पार्ट किए, ठीक है, 4 पार्ट किए, तो ये जो एक पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? 1/4 पार्ट. ये क्या होगा? हाफ पार्ट. ये क्या होगा? 3/4 पार्ट है ना. तो ये इसका जो है 1/4, मतलब ये हाफ पार्ट कितना? हाफ किया हमने 500. अगर मैंने क्वार्टर निकाला, क्वार्टर यानी ये पार्ट 1/4 पार्ट, तो इसका कितना आएगा? ऑफकोर्स 250 आएगा, है ना. और अगर मैंने 3/4 निकाला, मतलब 1 2 3, ये क्वार्टर्स का अगर वैल्यू निकाला 3/4 क्वार्टर का, तो कितना आएगा? इन दोनों का ऐड कर लो, दैट इज 750 ग्राम. हैव यू अंडरस्टूड? तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होगी. ओके, व्हेन यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो नाउ let us jump on our practice set 14. Now I am going to start the practice set 14 students, right? तो practice set 14 में सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाया था. सेम क्वेश्चन इज देयर, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी क्वेश्चन. Just you have to look after the question. I am going to write only the answer. Okay, तो practice set 14. Let us start our practice set 14. Okay, so what is the question there? In the table below, write the place value of each of the digit in the number 378.025. Means now the what is the question? 378. ओके, डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखोगे? एट द डाउन. ओके, बेस में लिखोगे 0 to 5. इस टाइप में आपको क्वेश्चंस दिए. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? अभी इसका प्लेस वैल्यू लिखना है. तो प्लेस आप क्या लिखोगे? प्लेस. ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? 100 प्लेस. आई एम नॉट राइटिंग इन कंप्लीट, राइटिंग इन शॉर्ट. टेंस, यूनिट, देन हाउ यू हैव टू रीड. जैसे ये डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आ रहे तो क्या होगा? 10 का क्या आएगा? 10th. 100 का 100 TH लगाना है आपको. ठीक है, और 1000 का क्या आएगा? thousands. जैसे जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी नंबर्स आते हैं वहाँ पे 10th का क्या आएगा? 10th TH, या 100 TH and 1000 TH. Okay, so whatever the number is given here, so we can write here. So ones means 1. Okay, 10 mean 10, 100 mean 100, and okay, this much is given. And now 10th means I told you जैसे ही डेसिमल पॉइंट रिमूव पॉइंट के बाजू वाला मीन्स नेक्स्ट नंबर कैसा होगा? 1/10 से आएगा. 1/10, 1/100 and 1/1000. Clear student? Now we have to write the digit. Digit means anybody know what do you mean by digit? Digit मतलब क्या होता है? So many times I am telling whatever this we are writing, that this all are digit only,
है ना। तो डिजिट मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द डिजिट। अब डिजिट्स क्या होता है, डिजिट मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर। डिजिट मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये डिजिट हम देखेंगे, वन डिजिट देखेंगे। जैसे ये वन यूनिट प्लेस मीन्स ये है, जैसे ये देखो, ये यूनिट प्लेस में, ये टेंथ प्लेस में, ये 100 प्लेस में। ओके, ये क्या, ये कौन सा प्लेस में होगा, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। तो आप देखो यूनिट, जो पहला यूनिट है वो कौन सा प्लेस है यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू राइट हियर 8। देन 10th प्लेस में क्या आएगा, 7 आएगा, बट 7 इज इन विच प्लेस, 10th प्लेस। तो हाउ मेनी जीरो वी हैव टू ऐड, यस 1 0। एंड 100 मीन्स 3, कौन से प्लेस में, 300 प्लेस। ओके स्टूडेंट, अब उसका जस्ट इसमें जाओगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट का 1 अपॉन आएगा। तो 10th प्लेस में क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0/10 लिखते हैं। लेट अस राइट, आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व। 100 मीन्स कौन सा प्लेट है, 2, तो क्या आएगा 2 अबाउ एंड 100, एंड लास्ट इज 5/1000। ओके क्लियर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसका क्या आएगा, ये तो हमारा डिजिट है, ये क्या हो गया हमारा, प्लेस वैल्यू लिख लिया हमने, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू, आप जब पहले तो हमने डिजिट लिखो फिर प्लेस वैल्यू लिखो। डिजिट ऑलरेडी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनी नंबर। तो सबसे पहले आप डिजिट लिखोगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखोगे, बट आई एम राइट ओनली डायरेक्टली प्लेस वैल्यू बिकॉज डिजिट ऑलरेडी इन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ मैंशन। ओके, इट वॉज मैंशन ऑलरेडी। तो अब आप इसको पॉइंट्स को रिमूव करें, ये जो 300 है जैसे कि वैसे रहेगा, बट यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको पॉइंट्स रिमूव करना है। बट 0/any नंबर इज व्हाट इज 0 ओनली। ओके, और 2/100 तो कैसे लिखोगे, 2, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 zeros, सो वी हैव टू राइट आवर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 0, सो 1 2 एंड पॉइंट, बिकॉज 2 zeros are there, so we have to put a decimal point after 2 number. If the 3 zeros are there, so we have to put the decimal point after 3 number. So 5 1 number 2 3, so 3 के बाद point, मतलब देखो 3 0 था तो मैंने डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखा, 3 नंबर के बाद। 2 0 था तो 2 डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखा, 2 नंबर के बाद। Have you understood? So this is about the question number 1, means already now we solve the question number 1 student, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी। आई एम गोइंग टू राइट एनी वन क्वेश्चन, मीन्स आई एम गोइंग टू सॉल्व एनी वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल बिकॉज यू नो, इफ़ यू नो द एडिशन यू कैन सॉल्व द वेरी नाइसली। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। What is the question? 905.5 plus 27.197, ठीक है। अब आप सोचोगे ये सिंपली एडिशन है, सो वी हैव टू डू द एडिशन, बट स्टूडेंट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द वॉट एवर द डेसिमल नंबर्स आर देयर, यू हैव टू राइट डेसिमल नंबर वेरी प्रॉपरली, ठीक है। एक पॉइंट भी आपका मिसशिफ हुआ सो यू विल गेट द आंसर रॉन्ग, और डेफिनेटली इन दिस क्वेश्चन सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग रॉन्ग ओनली। सो लेट अस solve this question. How we are going to solve? सबसे पहले whatever the first question is given to you that you have to write, और try to write in distance, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज़ लिखना, कोई भी नंबर्स लिखते हो तो try to write in distance. So 9 0 फ्री हैंड में लिखो 5.5, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डेसिमल नंबर। जब आप सेकेंड डेसिमल नंबर लिखते हो एट द डाउन, यू हैव टू बी अलर्ट वेयर इज द डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले आपको बात ध्यान में रखनी है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेसिमल पॉइंट क्या है, यहाँ पे है, सो डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट लिख लीजिए, लिख लिया। Okay, first step you can write anyway, but second step when you are going to write, so you have to be proper that where you are writing, where the decimal point of the first number is there, same okay line the decimal point of the second number should be there. तो लिख लिया। अब उसके बाद एक एक नंबर लिखो, यहाँ पे सिंपल 5 एक नंबर, बट यहाँ पे कितने नंबर है 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, एक 197, नो मैटर यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, बट यहाँ पे 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए, सो वी हैव टू राइट हियर व्हाट
0 0 मीन्स वी हैव टू कंसीडर दैट देयर विल बी अ 0 0, राइट। अब वो एक पार्ट हो गया हमारा। अब हमने डेसिमल पॉइंट बिफोर वाले नंबर लिखना है, तो बिफोर वाले नंबर क्या है यहाँ पे, एक एक लिखो, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, ये नथिंग इज देयर, सो वी हैव टू कंसीडर दैट प्लस साइन। नाउ एडिशन इज सिंपल, ठीक है, क्या होगा 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6, डेसिमल पॉइंट 7 + 5 12, 1 carry, then 3, 909, how we have to read 932.697. okay, so like this way you have to solve the question number 2 and question number 3 also. again I am going to repeat, पहला तो क्या करना है, फर्स्ट डेसिमल नंबर जो सेकंड डेसिमल नंबर है, फर्स्ट डेसिमल एज इट इज़ यू राइट। जब हम सेकंड डेसिमल लिखोगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट डेसिमल का पॉइंट है उसके सेम वे में डेसिमल पॉइंट लिखोगे, और देखो डिस्टेंस में लिखना ज़रूरी है, ओके। देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3 नंबर्स, सो राइट द 3 नंबर्स, नो मैटर दैट ऊपर में कोई नंबर नहीं है तो वी हैव टू टेक फ्रॉम अवर साइड 0, और अगर आप 0 भी नहीं लिखोगे तो भी कोई मैटर नहीं होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट के बाजू में मीन्स इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, दैट यू राइट। इफ द 1 नंबर इज नॉट गिवन टू यू देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज अ 0 और नो मैटर, यू कैन इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल्सो नो मैटर, ओके। देन डू द एडिशन, दैट दिस वे क्वेश्चन इज देयर, ओके। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ सब्ट्रैक्ट। अब हम सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन देखेंगे, ओके। लेट अस टेक द सब्ट्रैक्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन, (85.96 minus 2.345), ठीक है। लाइक दिस वे इस क्वेश्चन दिया। सो हियर ऑल्सो सेम वे क्या करना है, जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है उसको जैसे कि वैसे लिख लो, 85.96 लिख लिया। अब डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट, सेकेंड नंबर का डेसिमल पॉइंट का है यहाँ पे लिख लो। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3, सो राइट 1 3 3 4 5, ठीक है। एंड आफ्टर बिफोर डेसिमल 2 नंबर, सो 1 0। अब यहाँ पे एक नंबर नहीं है, यहाँ पे एक नंबर नहीं है, सो वी हैव टू कंसिडर फ्रॉम आवर साइड व्हाट 0 एंड हियर ऑल्सो 0, एंड व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू डू, माइनस सब्ट्रैक्शन। अब 0 में से 5 जाता है क्या, नहीं, सो वी हैव टू कट इट एंड वी हैव टू राइट हियर 10, okay, so 10 minus 5 is 5, and as soon as 10 is coming, so 1 carry is coming here, so what is the 5 minus 4 is 1, 9 minus 3 is 6, decimal point decimal, 5 minus 2 how much, 3, and 8 minus 0 is 8, so this is your answer, okay। you can check the method also, इन दोनों को add कर लो checking method की, that because in if the addition is there, so we have to do the subtraction, then you will get the answer, and if the subtraction is there operation, so we have to do this two addition, then you will get the answer 85। कैसे, जैसे 02.345 for second number plus third number add करो, how much, 6 5 9 5 8, so this is the quotient of the your first C, means our answer is right, okay। this down things for your purpose only I am doing, this thing you don't have to show, okay। just that is the checking method, that whether whatever the subtraction you are doing that is correct or not, okay। remaining 2 problems I am giving the homework for you now, means practice set 14 के हमने we solved already question number 1, question number 2 and question number 3, okay। in the next lecture video some word problems are given to you, let us go through that word problems, okay। thank you।